Good morning, everyone. So, I'm back again with chemistry video lecture. So, dear students, so far we had seen the topic alcohol. क्या क्या पढ़ लिया उसमें हमने? Classification, methods of preparation, physical properties. Now we will today begin with the chemical properties of alcohols. So, chemical properties of alcohols. Let us see chemical properties of alcohol. As we all know, alcohol, monohydric alcohol, is represented by the general formula ROH. अब इसकी अपने को केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है, तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज, ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज. Now let us focus on this structure of alcohol and we will find certain things. What is the first thing we see under this chemical properties? That alcohols are neutral to litmus paper. Neutral to litmus paper or litmus test, we can say in general. Neutral to litmus test means what? It does not change blue litmus to red, or if a red litmus brought in contact with alcohol, it does not change red litmus also. So alcohols are neutral to litmus test. But what it has been noted that alcohols are weakly acidic in nature. Weakly acidic in nature. So what does it suggest? When we put once again this structure into consideration, ROH, this alcohol is having OH bond here. Now according to Lowry and Bronsted theory, you know this Lowry and Bronsted theory, it is a protonic theory. Why I am saying it's protonic theory? Because on the basis of protons transfer, we can define acids and bases. So protonic theory. What does it suggest? Acids are proton donor. Acids are proton donor. Whereas what will we write about bases? Bases are proton acceptor. So proton acceptor. Okay. So what we see here in alcohol, ROH में ये जो OH को focus करे, तो this OH get removed from alcohol when brought in contact with strong bases. When it is brought in contact with strong bases, it donates proton, and any substance which donates proton will be a Lowry and Bronsted acid. So what we see, alcohols are acidic in nature according to Lowry and Bronsted theory. तो यहाँ ब्रैकेट में लिख के रख लेंगे ऐसा, Lowry and Bronsted theory. So as per Lowry and Bronsted theory, alcohols are acidic because alcohol can lose its proton bonded to oxygen or hydrogen bonded to oxygen in the form of proton, and it will act as an acid. और ये donate किसको कर सकता है? Strong bases को. Strong bases can abstract a proton from alcohol, and thus alcohols will act as an acid. Now, one more interesting part. अब अल्कोहल एक तो पहले हमने बतला दिया कि न्यूट्रल है लिटमस में, नो चेंज इन कलर. सेकेंड पार्ट हमने बोला अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर अकॉर्डिंग टू Lowry and Bronsted theory because it can easily donate its proton to strong bases. Now, one more contradictory part. We also know Lewis theory. So what does Lewis theory suggest? It's an electronic theory. है ना, इट्स अ इलेक्ट्रॉनिक theory, Lewis theory,
is an electronic theory, and this theory suggests that acids are electron pair acceptor, whereas bases are इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। अब अल्कोहल के स्ट्रक्चर में ऑब्जर्व करो, ROH है, क्या दिख रहा है यहाँ पर? We see two lone pair of electrons. So alcohol can donate this lone pair, can donate easily lone pair of electron. It can donate lone pair of electron, and as it can donate lone pair of electron, this alcohol will act as a base. So alcohol will act as a base as it can donate lone pair of electron. So lone pair of electron can be donated easily by alcohol and it will act as a base. तो अब अल्कोहल में क्या क्या दिख रहा है? लिटमस के हिसाब से देखें तो अल्कोहल न्यूट्रल, लॉरियन ब्रोनस्टेड थ्योरी के हिसाब से देखें तो अल्कोहल्स आर वीकली बेसिक, और अब लिविस थ्योरी लगा दिया तो लिविस थ्योरी के हिसाब से अल्कोहल क्या हो गया? दे आर बेसिक इन नेचर, सो इट इज अ लिविस बेस. Why it is acting as a Lewis base? It can donate lone pair of electron. So Lewis theory के हिसाब से ये बेस हो गया. तो अब अपने पास में क्या 3 पॉइंट बन गए कि ROH अल्कोहल न्यूट्रल टू लिटमस हो गया 1 पॉइंट. दूसरा ROH एसिडिक अकॉर्डिंग टू लॉरियन ब्रोनस्टेड थ्योरी, और थर्ड आ गया बेसिक अकॉर्डिंग टू लिविस कॉन्सेप्ट. तो दिस इज व्हाट वी सी द केमिकल प्रॉपर्टीज का फर्स्ट पॉइंट, दैट अल्कोहल्स न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक इन नेचर. सो ऑल दीज discussion suggest one more aspect, that in alcohol this RO bond is polar or ionic, this OH bond is polar or ionic. As both are polar, therefore alcohols are highly reactive. पता है अपने को alcohols are highly reactive. Now the reason reactivity of alcohol, both the bonds are polar in nature. So this is what the first point we have covered under the heading chemical properties. चलिए शॉर्ट में ये याद रखेंगे, न्यूट्रल टू लिटमस, एसिडिक अकॉर्डिंग टू लॉरियन ब्रोनस्टेड थ्योरी, बेसिक नेचर बिकॉज ऑफ लिविस थ्योरी, एंड बोथ द बॉन्ड्स आर पोलर इन नेचर, देयरफॉर alcohols are highly reactive because of polar nature of bond. Okay, polar nature of bond. Move to the next. Yes, to confirm this nature of alcohol, we can carry out certain chemical reaction. So second part, reaction with active metals. So alcohol can react with active metals like sodium, potassium, magnesium, aluminium, and releases a hydrogen gas. So here let us take one general reaction with active metals. ये reaction किस लिए पढ़ रहे हैं? To confirm acidic nature of it. So ROH alcohol reacts with sodium metal, will form sodium alkoxide, RONA. What we see here, there is a release of hydrogen gas. So release of hydrogen gas confirms that
alcohol is acidic in nature. Put for example, take C2H5OH 2 times ethyl alcohol, react with sodium metal. What we get? Twice C2H5ONA, and there is a release of hydrogen gas. This confirms that alcohols are acidic in nature. Reaction with active metal to confirm acidic nature, we get here sodium ethoxide. Okay, so this is the first reaction with metal. Now, what more we can focus here? What is happening here? There is a breaking of OH bond. करेक्ट है? OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और कौन सा बॉन्ड क्रिएट हो रहा है? ONA बॉन्ड ब्रेक हो रहा है. तो केमिकल प्रॉपर्टीज में अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या हो रहा है? रिएक्शंस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ. रिएक्शंस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ. Reactions due to breaking of OH bond. और उसमें ये फर्स्ट रिएक्शन अपने को मिल गया है ना, ये कैपिटल ए कर देते हैं, रिएक्शंस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, और उसे कंफर्म करने के लिए रिएक्शन विद एक्टिव मेटल. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. नाउ अगेन विल टेक द सेकंड रिएक्शन, and that is esterification. This reaction you know very well. We had seen earlier esterification. कोई बोलेगा कि esterification में क्या होता है ना? हाँ, yes, come on, recall कीजिए, recollect कीजिए. Esterification, alcohol is reacted with carboxylic acid in presence of acidic medium will produce esters. Okay? तो बस वही रिएक्शन है. अब जब एस्टरिफिकेशन होगा तब भी कौन सा बॉन्ड ब्रेक होने वाला है? OH बॉन्ड. लेट अस टेक दिस एग्जांपल. वी टेक जनरल रिएक्शन ROH. ये दिया आपने अल्कोहल. इसे आप कैसे रिएक्ट करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला पता है RCOOH. For convenience, we take here R dash C double bond OOH. Correct? तो ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड. This reaction is carried out in acidic medium in presence of sulfuric acid. अब क्या हो जाएगा यहाँ पर? कौन सा बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए? जरा ध्यान देंगे आप लोग, है ना? तो बॉन्ड ब्रेक होने वाला है OH बॉन्ड. अल्कोहल का OH बॉन्ड ब्रेक होगा और H निकलेगा इसमें से, उसके जगह पे एसीटेट ग्रुप आएगा. देखिए रिएक्शन, व्हाट वी गेट? R डैश C डबल बॉन्ड O एंड हियर इज R डैश. एस्टरिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड. ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड. OH बॉन्ड देखिए ब्रेक हो रहा है यहाँ पर, और आपको क्या मिल रहा है? R डैश COOR एंड दिस इज एन एस्टर. बचा क्या आपके पास में? यहाँ से देखेंगे आप. सो व्हाट हैपेंस? व्हाट रिमेन्स हियर? व्हाट रिमेन्स हियर इज वाटर मॉलिक्यूल. तो ये एस्टरिफिकेशन हो गया. लेट अस टेक वन एग्जांपल. We take alcohol C2H5OH, रिएक्ट करेंगे इसको एसिटिक एसिड से CH3 C डबल बॉन्ड OH. करेक्ट? तो क्या मिल गया अभी हमको? ये कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, एसिटिक एसिड. ये क्या है? इथाइल अल्कोहल. अब कैरी आउट करना है एस्टरिफिकेशन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन. H प्लस आयन क्या इंडिकेट कर रहा है? इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम. ओके, तो क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है? एस्टर CH3 COO
C2H5. And what is the side product? H2O. So मिला आपको एस्टर, नेम क्या होगा इसका? इथाइल एसीटेट. द नेम इज इथाइल एसीटेट, है ना. ये क्या है नोमेनक्लेचर में? दिस इज द एसिड पार्ट एंड दिस इज द अल्काइल ग्रुप. We get ethyl acetate. So ethyl alcohol and acetic acid will provide ester. So esterification is also a reaction where breaking of OH bond takes place. और esterification में क्या हो रहा है? Alcohol reacts with carboxylic acid forming an ester. Example भी देख लिया आपने. अब इसमें in place of carboxylic acid we will take derivative of carboxylic acid. Derivative of carboxylic acid, तो कौन कौन से डेरिवेटिव हमें पता है? दो सिंपल से डेरिवेटिव हम यूज करेंगे. एक तो रहेगा एसिटिल क्लोराइड CH3C डबल बॉन्ड OCl, है ना. ये OH के जगह पे Cl आ गया तो ये डेरिवेटिव बन गया एसिटिक एसिड का. We name it as acetyl chloride. And this ethyl alcohol as usual. अब क्या करना है यहाँ पर? फिर से esterification in presence of acidic medium acetyl chloride. चलिए क्या प्रोडक्ट मिलेगा हमको? C2H5OH plus acetyl chloride. What we get? CH3 C double bond O OC2H5. Side product है ना. Side product will be HCl. Side product is HCl. तो फिर से ये वही प्रोडक्ट बना आपका इथाइल एसीटेट. तो एस्टर मिल गया बाय यूजिंग एसिटिल क्लोराइड. तो आपने क्या एस्टरिफिकेशन में अल्कोहल लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट किया. अल्कोहल लिया, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज एसिटिल क्लोराइड से रिएक्ट किया. तो फिर से आपको मिल गया एस्टर. एक और डेरिवेटिव है इजी जो हमको पता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, मोर प्रिसाइजली डेरिवेटिव ऑफ एसिटिक एसिड दैट इज एसिटिक अनहाइड्राइड. ये बन गया फॉर्मूला एसिटिक अनहाइड्राइड. बच्चों देख रहे हैं सभी लोग ध्यान से, है ना. यू शुड बी फोकस्ड ऑन योर स्टडीज. सो ये इथाइल अल्कोहल हो गया. ये क्या हो गया? एसिटिक अनहाइड्राइड. एसिटिक अनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम. अब फिर से क्या हो जाएगा? एसिटिलेशन हो जाएगा, है ना. ये दोनों रिएक्शन में बेसिक क्या होता है? एसिटिलेशन. ये CH3CO ग्रुप हाइड्रोजन को रिप्लेस करता. देखिए ऐसा ही हो रहा है ना. CH3CO किसको रिप्लेस कर रहा है? हाइड्रोजन को. तो प्रोडक्ट अब क्या मिलेगा आपको? एस्टर मिल रहा है. तो एस्टर लिखते वक्त ऐसा लिखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O OC2H5. करेक्ट. तो ये मिल गया आपको एस्टर. अब साइड प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा. साइड प्रोडक्ट क्या बचेगा? CH3COO and H. So what we get here is CH3COOH acetic acid as a side product. और ये फिर से आपका इथाइल एसीटेट. करेक्ट है. तो इथाइल एसीटेट is the product what we get in the form of ester. तो केमिकल प्रॉपर्टीज में अब हमने क्या पढ़ लिया? एक बार रिवाइज करते हैं. रिएक्शंस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड. उसमें क्या पढ़ा? फर्स्ट रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिव मेटल. और दूसरा एक्टिव मेटल से क्या कंफर्म होता है? दैट दैट अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर. दूसरा क्या आ गया? एस्टरिफिकेशन. एस्टरिफिकेशन में क्या किया हमने? अल्कोहल को रिएक्ट किया कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ और आपको क्या मिल गया? एस्टर मिल गया. देन कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड और दो रिएक्शन
with the derivative of acetic acid. So these are the two reactions which involves breaking of OH bond. Now we'll move to the next, another type of chemical reactions, reactions involving breaking of CO bond in alcohol, breaking of CO bond in alcohol. तो जल्दी से नोट कर लिया, मैं इरेज कर रहा हूं अब इसको। ये फर्स्ट पार्ट, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड। नाउ इसमें रिएक्शन देखना है अपने को, तो इसमें फर्स्ट रिएक्शन, अब रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड, तो एक अल्कोहल का एक एग्जांपल लेके, जैसे ये मीथेनॉल लिख लिया है ना। अब बॉन्ड कौन सा ब्रेक होने वाला है? CO बॉन्ड, यानी OH ग्रुप निकलने वाला है इसमें से, करेक्ट है। तो दिस ग्रुप विल बी गोइंग आउट। इसकी रिएक्शन तो आप लोगों ने पढ़ा है। एक सबसे पहली रिएक्शन, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, रिएक्शन विथ HX। याद आ गया सभी को? प्रीवियस वाले चैप्टर में भी पढ़े थे, 11th क्लास में भी पढ़े थे। रिएक्शंस विद HX, HX हाइड्रोजन हलाइड, हाइड्रोजन हलाइड्स। और HX कौन कौन से पता है अपने को? HX कौन कौन से पता है हमको? HX, HCl, HBr और HI। तो ये रिएक्शन आपको हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा दिए। तो अब मैं इसको यहाँ बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, है ना। आपको एक शॉर्ट में इसको सिर्फ हम रिवाइज करने वाले हैं। रिएक्शन विद HX, दैट इज हाइड्रोजन हलाइड, रिएक्शन विद HCl, रिएक्शन विद HBr, रिएक्शन विद HI। और ये तीनों को क्या करना है? इसको फर्दर क्या करना है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो ये तो बहुत डिटेल में हमने लास्ट वाले टॉपिक में पढ़े थे, रिएक्शन विद HX। तो क्या करेंगे यहाँ पर? वी टेक एल्कोहल ROH, सो लेट अस टेक प्राइमरी, सेकेंडरी, इसमें ये भी एक तो रहेगा। तो प्राइमरी अल्कोहल CH3 CH2OH रिएक्ट विद HCl, किसके साथ रिएक्ट करते हैं? कंडीशन लुकास रिएजेंट याद आ रहा होगा आपको, अनहाइड्रस ZnCl2। तो ये क्या बन गया? HCl in presence of anhydrous ZnCl2 is what we call as Lucas reagent. Lucas reagent. What product we get? CH3 CH2Cl। साइड प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? H2O। HCl हो गया। अब सेकेंडरी अल्कोहल CH3 CHOH CH3 प्लस HCl, इसे भी अनहाइड्रस ZnCl2 से रिएक्ट करेंगे। तो आपको फिर से क्या मिलेगा? 2-क्लोरोप्रोपेन। तो ये मिल गया आपको 2-क्लोरोप्रोपेन और साइड प्रोडक्ट फिर से H2O। अब टर्शियरी अल्कोहल के साथ क्या होने वाला? ये 1 डिग्री ROH, ये 2 डिग्री ROH, करेक्ट है। अब हम लोग 3 डिग्री ROH को लिखेंगे। 3 डिग्री ROH में कंडीशन को क्या करना होगा? ये आपको हमने सिखाया था। एज टर्शियरी अल्कोहल इज हाईली रिएक्टिव, it does not require any reagent. It reacts directly with HCl and produces corresponding alkyl chloride, that is tertiary butyl chloride plus H2O। सही है। तो देखिए इसमें ब्रेक हो रहा है क्या? OH, ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, है ना। ये OH के जगह पे क्या आ रहा है? Cl। तो बॉन्ड ब्रेक हो गया ना, O C और OH बॉन्ड, CO बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो OH की जगह पे Cl आ गया।
So this is a very simple reaction. It is a repetition from the previous chapter. So अब आप क्या करने वाले हैं इसी में HX में HCl यूज कर लिया, HCl के जगह पे क्या आ जाएगा, HBr आ जाएगा। HBr अगर आ गया तो HBr के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहां पर HBr के लिए NaBr एंड H2SO4 लेना पड़ेगा। काय के लिए लेना पड़ेगा, प्राइमरी सेकेंडरी के लिए। तो HBr in presence of NaBr will give RBr। तो लिखते हैं यहाँ पर अल्कोहल और HBr in presence of NaBr and H2SO4 will give RBr plus H2O। वैसा ही रिएक्शन रहेगी HI के साथ में, ये भी रिपीटिशन है। अल्कोहल को रिएक्ट किया HI के साथ में, अब ये रिएक्शन में HI क्या हो रहा है, इट इज highly unstable, so it is prepared at the time of reaction by reacting potassium iodide and phosphoric acid. So this will provide HI, this will give Ri plus H2O। अब आप अपने प्रीवियस चैप्टर में देखेंगे तो क्या करना होगा आपको, यहाँ पर 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री के लिए रिएक्शन। जब आप HI लेंगे तो यहाँ पर फिर से 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री के लिए रिएक्शन लेंगे। तो रिएक्शन विद HX that is hydrogen halide will provide alkyl halide। तो स्टेटमेंट क्या बनेगा, when alcohol is reacted with hydrogen halide that is HX, then what product we get, alkyl halide। और इसका रिपीटिशन है आपके पास, ये सब लिखा हुआ है। अब इसी को आगे कंटिन्यूएशन में सेकेंड रिएक्शन में क्या होने वाला है, अब इसे हम अल्कोहल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल को देख लिया। इसमें नेक्स्ट रिएक्शन लिखते हैं, सेकेंड रिएक्शन विद PX3 एंड PX5, याद आ गया आपको, है ना, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड, फॉस्फोरस ट्राइआयोडाइड, और PX5 के लिए क्या यूज करना है, PCl5। तो PX3 साइड में लिखते हैं, PX3 में क्या क्या यूज करेंगे हम, PCl3, PBr3 एंड PI3। और PX5 के लिए एक ही रिएजेंट है और दैट इज PCl5, because PBr5 and PI5 are unstable, highly unstable, so they are not involved in the reaction। So PX3, PCl3, PBr3, PI3 and PX5 में क्या लेना है अपने को, PCl5। अब ये अल्कोहल है और इसकी रिएक्शन देखनी है अपने को। तो लेट अस टेक वन एग्जांपल हियर ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड वी विल रिएक्ट विद PCl3। तो PCl3 के साथ रिएक्ट करना है, PCl3 डायरेक्ट रिएक्शन, व्हाट वी गेट 3 times CH3 CH2Cl इथाइल क्लोराइड। साइड प्रोडक्ट बता दो, ये भी रिपीटिशन है, H3PO3, है ना, फॉस्फोरस एसिड। तो रिएक्शन विद PX3 में क्या लिया आपने, PCl3, क्या प्रोडक्ट मिल गया आपको, इथाइल क्लोराइड, एंड हियर व्हाट वी गेट इज phosphorus acid, phosphorus acid। अब क्या करना होगा, PCl3 के जगह पे PBr3 और PBr की जगह पे PI3। सेम रिएक्शन है, रिपीटिशन है। चलो प्रैक्टिस के लिए आप लोग कंप्लीट करो, जल्दी से पेन पेपर लो, ये रिएक्शन कंप्लीट करो। रेडी, 1 2 3, रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। आप अपने वीडियो को पॉज करो और रिएक्शन कंप्लीट करो। तो